friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Today, we will discuss about the Laplace transform. In the last lectures, we had discussed about the discrete Fourier transform, discrete time Fourier transform and continuous time Fourier transform, that is CTFT. To better understand the Laplace transform, let us have a LTI system, that is linear time invariant system, and the impulse response of that system is denoted as ST, and suppose the input of this system is e की power st. So, output will be defined as y t is equals to h s e की power st. This one is your input signal, where this is the Laplace transform, this is the H s is the Laplace transform of the impulse signal, which is denoted as H s, and H s is defined as integration from minus infinite to plus infinite e की power minus s t dt. In this equation, if we put the value of s is equals to j omega, so that we are able to get integration from minus infinite to plus infinite s t e की power minus j omega t dt. Okay. So, this is the basic mathematical representation of a Fourier transform, means this is the equation of Fourier transform of signal S t, and S t the impulse response of LTI system S t. So, for general values of complex variable, it is referred as Laplace transform. This equation is referred as Laplace transform of S t. S t is impulse response. Again, if we have a signal and which is x t, and if we take the Laplace transform of x t, then it is denoted as x s. So, the Laplace transform is defined as x s is equals to integration from minus infinite to plus infinite x t e की power minus s t dt, and it is the function of independent variable s. What is s? S is the independent variable corresponding to the complex variable in the exponent e की power minus s t, and the complex variable s is equals to sigma plus j omega. S is equals to sigma plus j omega, where sigma and omega are real and imaginary part respectively, means this is the your real part and this is your imaginary part. So, S is equals to sigma plus j omega. Similarly, so we can write that if the Laplace transform of x t is denoted as x s, then x s is equals to integration from minus infinite to plus infinite x t into e की power minus s t. This is the basic mathematical representation of the Laplace transform. Again, in the last equation, if we put s is equals to j omega, then it become the formula of the Fourier transform of x t, which is denoted here x j omega is equals to integration from minus infinite to plus infinite x t e की power minus j omega t dt. Okay. And if we put s is equals to
सिग्मा प्लस जे ओमेगा, बट वाई, क्योंकि आपका एस जो है इज एक्चुअली सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा. तो then we are able to get the Fourier transform of x t into e की power minus sigma t. We put sigma plus j omega at the place of s in the last equation. In this equation we put s is equals to sigma plus j omega, then by some mathematical practice we are able to understand, we get integration from minus infinite to plus infinite x t e की power minus sigma t e की power minus j omega t dt. What is this? This is the Fourier transform of x t e की power minus sigma t. So, by observing this equation we can recognize that x t e की power minus sigma t basically आपका is that the Laplace transform of x t, which can be interpreted as a Fourier transform of x t after the multiplication of exponential. What exponential signal? Exponential signal this one, e की power minus j omega t. And second conclusion, we can say that the real exponent e की power minus sigma t may be decaying or growing in time. Okay. This is decaying exponential signal. If we observe the shape of e की power minus sigma t, then we are understand that this is the decaying exponential signal, and this value means value of decaying or growing depends upon the value of sigma. If the sigma is positive, this is the decaying exponential, and if the sigma is negative, then this become a rising exponential. Okay. So आपका जो ये वैल्यू है e की पावर माइनस सिग्मा t जो है आपका सिग्मा की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है. To better understand, let's discuss a example, very good example, and suppose we have a signal x t and which is defined as e की power minus a t u t, where a is greater than 0. This is a very important thing. A is greater than 0. It's indicate that the value of a is positive, means if we draw this signal, we are getting decaying exponential signal. We are getting decaying exponential signal with the help of this equation, and also we are able to understand that this is the right handed signal because of the multiplication of u t. What is u t? U t is the unit step signal, means if we observe, we have decaying exponential signal and we have a unit step signal. If we multiply this signal, then we will get this type of signal, and this is the x t. We have to calculate the Laplace transform of this signal. First of all, let us have some experiment with the help of the Fourier transform. If we calculate the Fourier transform of this signal, then we get the Fourier transform of x t is equals to 1 upon j omega plus a, where a is greater than 0. Simply we put the value of the x t in the formula of the Fourier transform. So, आपका 1 upon j omega plus a मिल जाता है. अब यहाँ पे देखते हैं s, अगर हम इसका Laplace transform का फार्मूला लेते, what is the formula of the Laplace transform? x s is equals to x t into e की power minus s t. In the formula of the Laplace transform, we put the value of the x t. तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे? सिंपल यहाँ पे मिल गया e की पावर माइनस s प्लस ए टी डी टी. अब देखो यहाँ पे हमको पता है क्या, s इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा,
यहाँ पे हमने सिग्मा प्लस जे ओमेगा रख दिया, सिग्मा प्लस जे ओमेगा रख दिया, इक्वेशन सिग्मा प्लस जे ओमेगा रख दिया, इंटीग्रेशन करा तो हमको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन सिग्मा प्लस ए प्लस जे ओमेगा। कंडीशन क्या आ गया, पहले यहाँ क्या था, हियर वी हैव ए देन ए इज ग्रेटर देन 0। अब ए की जगह क्या है आपका सिग्मा प्लस ए, देन सिग्मा प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। ओके, अगर हमने ये कब हुआ, अगर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूला यूज करके हमने एनालिसिस किया, मैथमेटिक्स किया। तो यहां पे देखो, अब यहां पे समझना है हमको ये क्या होता है आपका। अब देखो इसी को थोड़ा मैथमेटिकली हम सेग्रीगेट करें तो वी कैन राइट दैट 1 अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस ए, वी कैन राइट दैट 1 अपॉन, हमने क्या करा सिग्मा और जे ओमेगा को एक साथ लिया और ए को एक साथ गया, और हमको पता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एस होता है। तो सिंपल हमने उस लास्ट वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में सिग्मा प्लस जे ओमेगा की जगह हमने एस रख दिया, तो हमारा क्या आ गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल आपका आ गया 1 अपॉन एस प्लस ए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, इन द लास्ट इक्वेशन वी आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो रियल वैल्यू की बात करते हैं, सिग्मा की बात करते हैं, जो आपका सिग्मा आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन जब आपका 1 अपॉन एस प्लस ए तब आएगा जब रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। यहां से लास्ट वाले इक्वेशन से अगर आप इस कंडीशन को समझें, ये क्या रहा, सिग्मा प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, then also we can write sigma is greater than minus a, and what is sigma, sigma plus j omega में sigma क्या है, sigma is the real part of this thing, so you can write that this one or real part of s is greater than, कई जगह पे आपका ऐसा भी लिखा होगा s is greater than minus a, यही चीज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होती है। इसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जिस रीजन में पर्टिकुलर उस सिग्नल का, मीन्स ये जो लास्ट एग्जांपल e की पावर माइनस AT/ST जो आपका सिग्नल है ये एग्जिस्ट करेगा उस रीजन के लिए, वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमको बताता है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि ये आपका इक्वेशन कब आएगा, जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम ए की वैल्यू 0 रख दें, अगर हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 रखने का मतलब हो गया ई की पावर माइनस 0, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम पूरा रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रखेंगे, यहाँ भी रखें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाएगा, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस। देखो ये 0 हो गया तो यहाँ यूटी बचा, यहाँ 0 रख दिया 1 अपॉन एस। तो इस कंसेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, इस कंसेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं कि यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस है, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस फॉर रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए। और इसी इक्वेशन में अगर लास्ट इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू हम 0 रख दें तो आप देखो एक्स 0 प्लस जे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस ए हो जाएगा, जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपने 0 रख। दूसरी बात जो यहाँ पे समझने की है, नोट करने की है, इफ ए इज निगेटिव और 0, अगर ए की वैल्यू निगेटिव है और 0 है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका एग्जिस्ट करेगा, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगा। यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन द बेसिक फार्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लास्ट वाला हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्कस करना पड़ेगा हमको
e की पावर माइनस ए टी यू टी का जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं वो आया है 1/s प्लस ए। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस s इज ग्रेटर देन माइनस ए, s इज ग्रेटर देन माइनस ए, या रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस ए। ओके, दूसरा हम सिग्नल लेते हैं माइनस ई की पावर माइनस ए टी यू माइनस टी। इस सिग्नल का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो भी हमारा 1/s प्लस ए ही निकल के आएगा विद द हेल्प ऑफ द बेसिक फार्मूला ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये 1/s प्लस ए जो आएगा उसके लिए कंडीशन आपकी जो बनेगी यहाँ पे बनेगी रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन माइनस ए, रियल पार्ट ऑफ a इज लेस देन माइनस ए। मैथमेटिक्स आपके इस सिग्नल का और इस सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेम है, वो क्या है 1/s प्लस ए, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसकी क्या है ग्रेटर देन ए, और इसका क्या है ग्रेटर देन माइनस ए, इसका क्या है लेस देन माइनस ए। समझना है हमको। सपोज करते हैं ए आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ए अगर आपका ए पॉजिटिव है शुरू में भी दिया गया तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे आता है माइनस ए, तो हमको समझना है फॉर दिस इक्वेशन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन मीन्स दिस वन, राइट हैंडेड, रीजन ऑफ कन्वर्जन इज राइट हैंडेड। सिमिलरली फॉर दिस थिंग, for this signal the Laplace transform is left handed sequence। मैथमेटिक्स सेम है लेकिन जो इसी को हम एस प्लेन बोलेंगे, दिस वन इज एस प्लेन, ये आपका रियल एक्सिस होता है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, रियल एक्सिस होता है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स दोनों का सेम है लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो दिस इज द, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की खूबी है। दो अलग अलग सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम है लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों का अलग अलग है। देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है कि पहले वाले सिग्नल के लिए s इज ग्रेटर देन माइनस दिस थिंग, ग्रेटर देन माइनस ए। सिमिलरली इस वाले सिग्नल के लिए लेस देन माइनस वन। मैथमेटिक्स सेम एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों के अलग अलग हैं आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं e की पावर माइनस 2t ut, 3e की पावर माइनस 2t ut माइनस 2e की पावर माइनस t ut। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल मैथमेटिक्स में हम रखेंगे, देन वी विल गेट दिस वन। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि पर्टिकुलरली अगर e की पावर माइनस टी यू टी, ई की पावर माइनस टी यू टी, अगर हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन माइनस वन। सिमिलरली अगर हम इस वाले सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा -2 होगा। अब यहाँ समझते हैं, ये आपका एस प्लेन हो गया, ये हो गया -1, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया, ठीक, -1 हो गया, ये हो गया -1 यहाँ है तो -2 यहाँ होगा। दूसरे वाले सिग्नल के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये। तो अब इन दोनों रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का जो इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन पार्ट्स कहाँ से है? -1 से, बिकॉज हियर यहाँ से लेके यहाँ तक के स्पेस में इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ नहीं रहा, दोनों कॉमन कहाँ है, इंटरसेक्शन कहाँ पे? सो वी कैन से दैट -1। सो पूरे, अगर हम पूरे सिग्नल की बात करें, इसका अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1। सिंपल मैथमेटिक्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो वी आर एबल टू understand that the reason of convergence of 3e की पावर -2t ut minus 2e की पावर -t ut will be a real part of s is greater than -1. Next this example, e की पावर -2t ut plus e की पावर -t cos 3t
cos 3t ut. Similarly, cos theta is equals to e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा का डिवाइडेड बाई 2 का कंसेप्ट हमने अप्लाई किया. सेम यू विल गेट दिस टर्म एंड यू विल गेट दिस टर्म, यू विल गेट दिस टर्म. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हमने करा है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सिमिलरली ई की पावर माइनस ए टी यू टी फॉर्म में है, एस 1/s प्लस ए के फॉर्म में आ जाएगा. ओके, एंड सिमिलरली अब इन सबका इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि देखो कहाँ पे है आपका, ये -1 है, -2 है, तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा, -1 आएगा. तो कॉमनली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या हो जाएगा आपका, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1. Some properties of the here we have some properties of the region of convergence. First one is ROC of XS consist of strip parallel to j omega axis in the S plane. Means let's have this slide. Means हमको जो सिग्मा प्लस जे ओमेगा की बात करते हैं ना, सिग्मा प्लस जे ओमेगा रियल पार्ट ऑफ एस. एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा. रियल पार्ट ऑफ एस का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ रियल पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, है ना. तो इसी वजह से सिर्फ इस एक्सिस को हमको बॉदर करना होता है. इमेजिनरी के लिए हम कुछ ये वाली इस एक्सिस पे हम कहीं पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओमेगा की वैल्यू फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो सकती है. फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन पहुंच चुके, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो, इसलिए रियल पार्ट की वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी ये है. सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर रेशनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन द लास्ट एग्जाम्पल्स यू सी दैट डज रेशनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म द ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, इफ xt is in finite duration, if xt is finite duration and it is absolutely integrable, then ROC is the entire S plane. And fourth property, if xt is the right sided and if the real part of S is equals to sigma 0 is in the ROC, then all values of S for which real part of S is greater than 0 will also be in the ROC. Fifth property of ROC is if xt is the left sided, जैसे हमने चौथे प्रॉपर्टी में देखा था, वो राइट साइडेड के लिए था, ये लेफ्ट साइडेड. एंड इफ द लाइन रियल पार्ट ऑफ S is equals to sigma 0 in the ROC, then all values of S for which real part of S is less than sigma 0 will also be in the ROC. And similarly, you can see property 6 and property 7 and property 8. Property 6 is if xt is two sided and if the line of real part of S is equals to 0 is in the ROC, then ROC will consist of a strip in the S plane that include line real part of S is equals to sigma 0. And if Laplace transform XS the Laplace transform XS of xt, means you have a signal xt and the Laplace transform is denoted as xs, is the rational, then the region of convergence is bounded by poles or extend to the infinity and no poles of xs are contained in the ROC. Similarly, आपकी 8वीं प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ राइट हैंड साइडेड है, राइट साइड. ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स हैव ए सिंपल एग्जांपल. सपोज करते हैं आपका एक सिग्नल है xt एंड विच इज डिफाइंड एट e की पावर माइनस at इस रेंज के लिए. अगर हम इसका देखो, इसका हम सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपका ये सिग्नल. अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम इस सिग्नल को ही देख के बता सकते क्या है. XS हैव ए पोल, अगर हम पोल की बात करें, देखो यहां से हम निकाल सकते हैं S इक्वल्स टू माइनस a विच सम फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी 2 के आधार पे हम कह सकते हैं कि कंसिस्ट द इंटायर एस प्लेन. ठीक है. नेक्स्ट, इससे आप ये भी कह सकते, सिंस दिस एग्जांपल xt इज ऑफ फाइनाइट लेंथ
it follows from the property 3 that ROC is the entire S plane. प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 2 का यूज करके हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. एंड सिंपली वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई वैल्यू एस की वैल्यू सपोज करते हैं, एग्जांपल में एस की वैल्यू हमने ए रख दिया, लास्ट वाले में अगर हमने एस की वैल्यू ए रख दिया यहाँ पे दोनों केसेस में, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का केस बन जाएगा. तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई कर दिया, तो एक्स ये माइनस ए होगा, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी माइनस ए होगा. दिस इज सिली मिस्टेक. इसको टू टी. एल हॉस्पिटल रूल भी हमको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेगा अगर 0/0 का केस बनता है. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर योर प्रैक्टिस. यू कैन अप्लाई दिस एग्जाम्पल and get the result. This is for practice and thank you very much.